जामनगर में एक नवुं मल्टीप्लेक्स बनावाना भागरूपे मुंबई स्थित बॉलीवूड फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप उर्फे टूटू शर्मा અને સિતારા મલ્ટીપ્લેક્સના એમડી રાહુલ નેહરા ગઈકાલે સાંજે જામનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। યુનો ડ્રગ્સના ઓનર હિતેશભાઈ સૌજાણી અને તેમના ધર્મપત્ની જાગૃતિબેન સૌજાણીએ આ બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત કર્યું હતું। જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જયેશભાઈ રૂપારેલિયાએ પ્રદીપ ઉર્ફે ટૂટુ શર્માની મુલાકાત લીધી હતી। આ મુલાકાત દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે જામનગરના હિતેશભાઈ સૌજાણીને સાથે રાખીને પ્રદીપ શર્મા અને રાહુલ નેહરા સિતારા મલ્ટીપ્લેક્સ ગ્રીન સિટી વિસ્તારમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। પ્રદીપ ઉર્ફે ટૂટુ શર્માનો પરિચય જાણીએ તો અત્યાર સુધીમાં પ્રદીપ શર્માએ હિન્દી, મરાઠી, ઇંગ્લિશ, ભારતની લગભગ ભાષામાં 30 ફિલ્મો બનાવી છે। પોપ્યુલર ફિલ્મોની વાત કરીએ તો મર મિટેંગે, રાજકુમાર, અમીરી ગરીબી સહિતની ફિલ્મો બનાવી છે। આ ઉપરાંત જાણીતી અભિનેત્રી પદ્મિની કોલ્હાપુરી પ્રદીપ શર્માની પત્ની છે, તેમજ તેમને પ્રિયંક નામનો એક દીકરો છે। આમ ભારતની જાણીતી હસ્તી પ્રદીપ શર્માએ ફિલ્મ નિર્માતાની સાથે મલ્ટીપ્લેક્સ બિઝનેસમાં ઝંપલાવ્યું છે, જેના ભાગરૂપે જામનગરમાં હિતેશભાઈ સૌજાણીને સિતારા મલ્ટીપ્લેક્સના ચેઇન પાર્ટનર બનાવ્યા છે। હિતેશભાઈ સૌજાણીના જણાવ્યા પ્રમાણે આવતા 6 મહિનાની અંદર જામનગરના ગ્રીન સિટી વિસ્તારમાં સિતારા મલ્ટીપ્લેક્સ શરૂ કરવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આ ફિલ્મ નિર્માતા પ્રદીપ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે સિતારા મલ્ટીપ્લેક્સમાં પોપકોર્ન વગેરે ફૂડ આઇટમ એકદમ વ્યાજબી ભાવમાં મળશે। મિડલ ક્લાસના પરિવાર પણ मनोरंजन व्याजबी दरे माणी सके तेवा कॉन्सेप्ट साथे आ प्रोजेक्ट थई रह्यो छे। वधुमां आ मल्टीप्लेक्स 3 स्क्रीन वाळुं तैयार करवामां आवशे। सेल्फी पॉइंट, गेम झोन अने मनोरंजननी अन्य आकर्षक राइडनी सुविधा उपलब्ध करवामां आवशे। आम जामनगरना नगरजनोने आवता दिवसोमां नवा ज प्रकारनुं मल्टीप्लेक्स 3 स्क्रीन वाळुं सिनेमा प्राप्त थशे। फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा साथे जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलियाए करेल प्रश्नोत्तरीना आ रह्या मुख्य अंशो। જામનગરના ફૂડ લવર્સ માટે આવી છે શાહી ભેટ। જામનગરનું ખ્યાતનામ પાપા લુઈસ પિઝા હવે પ્રવેશે છે પોતાના બીજા વર્ષમાં અને સાથે લાવ્યું છે એક અનોખો ફૂડ ફેસ્ટિવલ ઓફ 101 પ્લસ ડિશિસ। અનલિમિટેડ પિઝાની વેરાયટી સાથે પંજાબી, ગુજરાતી, ફુલકા રોટી, ચાઇનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન, ઇટાલિયન ટેસ્ટ અને પાણીપુરી તથા ઇન્ડિયન મીઠાઈ સહિત 101થી વધુ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ, તે પણ અનલિમિટેડ। લંચ માત્ર ₹293 અને ડિનર માત્ર ₹345 જીએસટી સહિત દરેક લંચ અને ડિનર બાદ ફ્રી આઈસ્ક્રીમની મીઠી મોજ તો ખરી જ। દર બુધવારે ખાસ ઓફર, લંચ બફેટ ₹293 ને બદલે ફક્ત ₹239, ડિનર બફેટ ₹345 ને બદલે ફક્ત ₹279, એટલે કે સ્વાદ, મજા અને બચત ત્રણેય એક સાથે। બર્થડે પાર્ટી હોય, કોલેજ ફ્રેન્ડ્સનું ગેટ ટુગેધર હોય, એન્ગેજમેન્ટ પાર્ટી હોય કે કોર્પોરેટ મીટિંગ અથવા મસ્તી ભરી કિટી પાર્ટી, પાપા લુઈસ પિઝા બની ગયું છે આખા જામનગરનું ફેવરિટ ફૂડ ડેસ્ટિનેશન। સ્થળ પાપા લુઈસ પિઝા, અવધ સ્ક્વેર, જામનગર લાલપુર રોડ, નિયર શેલ પેટ્રોલિયમ, ગ્રીન સિટી, જામનગર। संपर्क 96 243 355। पापा लुईस पिज़ा, एक बार आवशो तो वारंवार आवशो। जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारे एक जामनगर का एक मेहमान बना है, ऐसा प्रोड्यूसर है, वो नामांकित व्यक्तित्व है, ऐसा टूटू शर्मा, प्रदीप शर्मा के नाम से आया है और ऐसा बड़ा आदमी है क्योंकि उसने 30 फिल्म बनाए हैं और इसमें भी जो पॉपुलर फिल्म बना है ऐसा मीर मटेंगे, मर मिटेंगे, राजकुमार और अमीरी गरीबी, ऐसा बहुत फिल्म बनाया है। वो जामनगर का मेहमान बना है। वो जामनगर में हितेश भाई सौजाणी और जागृतिबेन सौजाणी इसको लेके आए हैं और आज हमारे इंटरव्यू लेने की बात है, हमारे साथ है और इसने यहाँ जामनगर में सितारा मल्टीप्लेक्स एक सिनेमा की बात करने आए हैं क्योंकि अभी समझो मार्च अप्रैल में एक ऐसा एक यहाँ मल्टीप्लेक्स बनने वाला है, तो इसका ओनर जो होगा और ये पार्टनर होगा, ये टूटू शर्मा जी भी इसका पार्टनर होगा और हितेश भाई भी इसका पार्टनर होगा। और यहाँ अच्छी तरह से जामनगर अभी बहुत आगे बढ़ गया है, मेट्रो सिटी के हरीफाई में आ गया है और हमारे साथ टूटू शर्मा जी है। सर, जो आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं, क्या प्रोजेक्ट है जामनगर में, आप क्या देने वाले हैं? पहली बात तो नमस्कार जामनगर के सारे लोगों को, सब ऑल द पीपल हियर
एक्चुअली विश देम वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पे एक्चुअली इस पीरियड में जो इतना पायस और इतना प्योर पीरियड माना जाता है नवरात्रि, उसमें यहाँ पे मुझे हितेश भाई ने हमको इनवाइट किया है यहाँ पे। और हमारी एक्चुअली क्या है कि एक चेन है, मल्टीप्लेक्स चेन हम कर रहे हैं सितारा के नाम से, और नाम सितारा है उसका, बट जो स्पेलिंग है वो सी से है उसकी, तो सी इज़ फॉर सिनेमा। तो ये चेन की सबसे अच्छी बात, बड़ी बात और अलग बात ये है कि इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी मतलब ए क्लास फैसिलिटी है, जैसे साउंड हो, सीटिंग हो, एयर कंडीशनिंग हो, खाना पीना हो, वो सब ए क्लास है बिल्कुल। बट उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक रीज़नेबल रेट पे है। हम चाहते हैं कि जिसमें जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनको पूरी ये फैसिलिटी मिले और उसका वो मज़ा ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें एट अ वेरी 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 रीज़नेबल रेट। मतलब यहाँ पे आपको आके और 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि पॉपकॉर्न खाऊं कि नहीं खाऊं। आप बिंदास जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न खा सकते हैं। और हमारी जैसे जहाँ भी ये चेन चल रही है, वी आर द पीपल जहाँ हम मतलब जो बेस्ट कंटेंट है वो लेके आते हैं। और हितेश भाई से बात हुई है, तो हितेश भाई की पार्टनरशिप में हम लोग यहाँ पे सितारा इस्टेब्लिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जामनगर के लोग जो हैं वो बहुत प्राउड फील करेंगे इससे। और जैसे जामनगर वैसे भी एक अंबानीज़ के लिए फेमस है, तो हमारी जो एफर्ट है ये रहेगा कि हम ऐसा सितारा बनाएं कि वहाँ पे अंबानी भी पिक्चर देखने आए। सर ये जो जामनगर में आप लेके आए हो, और गुजरात की जहाँ तक बात है, तो ऐसे चेन यहाँ सितारा के नाम से है कोई जामनगर और गुजरात में और पूरा पान इंडिया में? एक्चुअली पैन इंडिया में तो बहुत जगह है। इनफैक्ट हम लोग ने, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो या देखी हो, तो 35 साल के बाद कश्मीर में सिनेमा खुले हैं। तो वो जो पहल की है और जो हिम्मत की है वो सितारा ने की है। हमारे 5 सिनेमा हैं वहाँ पे कश्मीर में जो चल रहे हैं। और हिमाचल में वी आर द बिगेस्ट चेन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स अपनी हैं, बाकी सब जगह भी हैं। और गुजरात में जो जमखंबालिया में हमारी सितारा है, श्री राम सितारा करके, विशाल हैं लुक आफ्टर कर रहे हैं, विशाल जी का प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी मतलब इट्स डूइंग वेरी वेल एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट प्रॉपर्टी। एंड मुझे लगता है कि हितेश भाई की और इनकी विशाल की जान पहचान है, और वहीं से शायद बात शुरू हुई और वहीं से इनको आइडिया आया कि ये सितारा का सिनेमा करना चाहिए। सर आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? ये फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है कि आई हैव बीन लकी। एक्चुअली मेरी जो वाइफ हैं उनका नाम पद्मिनी कोल्हापुरे है, वो एक्चुअली फिल्म एक्ट्रेस हैं। और मंगेशकर ख़ानदान उनकी, मतलब जो लता जी हैं, आशा जी हैं, वो उनकी बुआ हैं। म्यूज़िकल फैमिली है पूरी। मेरे जो फादर इन लॉ जो थे, जिनकी डेथ हुई है, पंडारीनाथ कोल्हापुरी, वो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, सिंगर थे। उनकी अभी डेथ हुई है। और वो एक, अगर आपने सुना और जानते हो तो वीणा करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। मेरे फादर इन लॉ जो है वो बजाते थे, सिखाते थे। और एक हमारी फैमिली में वीणा है जो उनका खुद का वीणा है, जो उनको गिफ्ट हुआ था उनके उससे। वो इज़ प्रॉब्ली द ओनली वीणा इन इंडिया, वो 150 साल पुराना वीणा है। मेरे एक बेटे हैं जिनका नाम प्रियांक शर्मा है, वो भी एक एक्टर हैं। उन्होंने एक अभी फिल्म हाला की थी जिसमें वो लीडिंग एक्टर थे। और यही हमारी छोटी सी फैमिली है। बात आई सितारा मल्टीप्लेक्स कि इसमें आपने गुजरात की जहाँ तक बात है, और कितने समय से शुरू है? ये हमने एक्चुअली जो सितारा है ये ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ये हमने लास्ट ईयर कुछ अगस्त से शुरू किया था, जुलाई अगस्त से। और ये जो राहुल नेहरा जी हैं, जो इसके कंपनी के एमडी हैं, फाउंडर हैं, ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का ये पूरा एफर्ट है जो सितारा शुरू हुआ। और अभी अपने हार्डली कुछ 1 साल के अंदर हम ऑलरेडी करीबन राउंड अबाउट 25 स्क्रीन्स तो ऑलरेडी हमारी हो गई हैं। और होपफुली हम इसको बहुत जल्द 50 स्क्रीन टच कर जाएंगे इस साल में। और हमारा एफर्ट ये रहेगा कि नेक्स्ट ईयर इसको डबल कर दें। और बात आई आपकी खुद की फिल्म की, तो फिल्म में आपका अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी फिल्म के अंदर ऐसा है कि अभी जैसे लास्ट मेरी जो थी एक वेब सीरीज़ थी, वेब फिल्म थी, जिसमें तापसी पन्नू थी, जिसका नाम था ब्लर करके।
और अभी एक वेब सीरीज़ में कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो मधुबाला एक्ट्रेस जो थी उनकी बायोग्राफी है, जिसको एक वेब सीरीज़ में शोकेस होगी, उस पर काम चल रहा है। और एक फिल्म है जो अनुराग कश्यप डायरेक्ट करेंगे, वो फिल्म की शूटिंग होगी। जैसे मैंने कहा है कि कोशिश ये रहेगी कि हितेश भाई का सिनेमा और मेरी फिल्म दोनों एक साथ कंप्लीट हो, और इनका सिनेमा और हमारा सिनेमा उसी फिल्म से ओपन हो। कितने समय में आपकी सितारा मल्टीप्लेक्स जामनगर में शुरू हो जाएगी? ये तो हितेश भाई पे डिपेंड करता है, बट जो हितेश भाई से मिल के और इनकी स्पीड देख के मुझे लग रहा है कि ये मेरे सोचने से पहले ये बना देंगे। तो मुझे अब कंपटीशन हो गया है कि मैं फिल्म जल्दी से जल्दी बनाऊं, नहीं तो ये तो सिनेमा जल्दी बना के खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बना देंगे। जो काम दूसरे लोग 6 महीने 9 महीने में करते हैं, मुझे लगता है 3 महीने में खड़ा कर देंगे। सर, आपने जब यहाँ आप जामनगर में आए, इसके पहले आपने जामनगर का डेटा भी निकाला होगा कि जामनगर क्या चीज़ है, तो इसमें आपका क्या क्या रिमार्क आप देंगे जामनगर को? जामनगर जो है, एक तो सबसे अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ जामनगर की क्या है, दैट इट्स एन अपकमिंग सिटी। और ऑलवेज जहाँ पे जो जगह बढ़ रही है उसमें बिजनेस करना, उस जगह पे ये करना, उस जगह पे एंटरटेनमेंट हब बनाना, ये करना इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल। बिकॉज जैसे जैसे जगह बढ़ रही है तो उसके जो दर्शक हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लोगों में एक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर दिस प्लेस। और जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लेक्स हैं यहाँ पे, बट सितारा इज़ नॉट जस्ट अ मल्टीप्लेक्स। सितारा इज़ एक्चुअली इज़ गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर पीपल। उनको एक अलग चीज़ मिलेगी। सो हम लोग ये चीज़ में दूसरे लोगों से डिफरेंट होंगे, एंड आई एम श्योर दैट वी विल मेक जामनगर प्राउड। सर, आप बहुत समय से, बहुत दायका से आप काम कर रहे हो ये फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो इसमें पहले का और अभी का क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे है कि दौर चेंज होता है। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो हर एक चीज़ में है। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके बिजनेस में भी, आपके काम में भी वो तब्दीली आती है। और मुझे लगता है कि जब भी तब्दीली आती है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस होता है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी वो बोलते थे के एल सहगल साहब बहुत अच्छा गाते हैं, उनको के एल सहगल पसंद था। फिर उसके बाद लोगों को मुकेश पसंद था, फिर लोगों को किशोर कुमार पसंद था। तो लोगों का अलग अलग है, वो चेंज होता रहता है वाली बातचीत है। एंड ऑलवेज आप अगर फील करते हैं, जो बात करते हैं लोग बेसिकली कि जो पुराना ज़माना था, जो पहले था वो अच्छा था, ऐसा लोग कहते हैं। पर मैं वो बात को नहीं मानता। बिकॉज आपने अगर देखा हो तो एक्चुअली एक फ्रेज़ है जो हर एक, जो हितेश भाई भी मेरे से एग्री करेंगे, कि जब वो बीवी खाना बनाती है तो आप बोलते हैं कि खाना अच्छा है, बट मेरी माँ जैसा नहीं है। मेरी माँ जो बनाती थी वो अलग बनाती थी। तो अगर आप इस लॉजिक को लेके जाएंगे तो अभी तक तो वर्स्ट फूड आ जाना चाहिए था। कोई इनकी माँ उससे बेटर बनाती थी, उनकी माँ उनसे बेटर बनाती थी। तो ये बोलने की बात है, और ये जो है आपकी सोचने की बात है। मेरे हिसाब से जो दौर चेंज हो रहा है, जो भी अभी आज का काम हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट प्रोग्रेस इज। लेकिन सितारा जो आपने ब्रांड निकाला है, तो इसका सोच कहाँ से आई? आपने तो, आप तो प्रोड्यूसर थे, आप ऐसा ये पूरा पान इंडिया में ऐसे ये जो चेन बनाने निकले हैं, तो ये ऐसा सोच कहाँ से आई? ये आपकी उम्र भी बड़ी है। एक्चुअली उम्र की बात पे मैं नहीं जाऊंगा, उसको हम लोग साइड में रख देते हैं। बट जो आप सितारा जो बोल रहे हैं, ये सोच एक्चुअली, देखिए, एक प्रोड्यूसर के लिए क्या चीज़ होती है। जैसे मैं इतनी सारी फिल्में मैंने बनाई हैं और इतना काम किया है। एक प्रोड्यूसर जो होता है वो एक्चुअली एक फिल्म बनाता है, और उसके लिए अल्टीमेट क्या है? उसके लिए अल्टीमेट है कि वो थिएटर में रिलीज़ हो। अगर वो सिनेमा भी उसका खुद का हो तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इसको आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक मेरी ड्रीम थी, एक मेरी जो बोलते हैं कि सोच थी, एक मेरी ख्वाहिश थी। एंड फॉर्चुनेटली राहुल नेहरा जी मुझे मिले, जो ऑलरेडी ये काम जानते हैं, ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मेरी फिल्म हो और मेरे सिनेमा हो, उसमें फिल्म चले। तो उसी को लेके मैंने, आपका जीवन का व्यक्तिगत बात है, तो यज्ञ जीवन का क्या प्रसंग बढ़िया क्या है आपको जीवन में अभी भी याद है? प्रसंग क्या, ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब आशीर्वाद है, सब खुशियाँ हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि काम काज की वो तो चलता रहता है, इसमें कभी सफलता होती है, कभी इसके अंदर निराशा होती है, ये सब तो मतलब लगा ही रहता है ज़िंदगी में। पर सबसे खुशी की बात है कि मेरे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं काम करूँगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं।
एंड आई थिंक इससे ज़्यादा और आदमी क्या मान। मुश्किल समय कौन सा था ये समय पे? आपने बहुत अपने आगे बढ़ा है, तो इसमें मुश्किल भी समय आया होता होगा। मुश्किल समय आया था। मैंने एक फिल्म बनाई थी राजकुमार, जो एक्चुअली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म थी उस टाइम पे। उसमें एक सेट मैंने लगाया था, जो फिल्म सिटी के अंदर सेट लगा था, जो उस टाइम पे 3.5 एकड़ में सेट था वो। और उसमें ऐसे था कि जो सेट लगाने के लिए प्लैंक्स यूज़ होते हैं, पट्टे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो इतने सारे बॉम्बे के सारी फिल्म इंडस्ट्री के उसके अंदर प्लैंक्स लगे हुए थे, बाकी सेट लगने बंद हो गए थे बिकॉज प्लैंक्स अवेलेबल नहीं थे। और वो सेट करीबन 1 साल तक खड़ा रहा और पूरी ऑल इंडिया प्रेस वहाँ पे आई थी और उन्होंने कहा था कि मुगल आज़म का जो शीश महल था उसके बाद अगर कोई सेट लगाए तो ये लगाए। तो हिंदुस्तान की बहुत महंगी फिल्म थी, वो फिल्म चली नहीं। वो फिल्म एक्चुअली मुझे उसके अंदर नाम बहुत मिला बिकॉज वो पहली फिल्म थी जिसके अंदर वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे। जो अब लोग कर रहे हैं वो मैं उस फिल्म में कर चुका हूँ। बट वो फिल्म न चलने से मेरे को एक काफ़ी वो धक्का लगा था, मतलब एक फाइनेंशियल भी काफ़ी लॉस हुआ। तो पीरियड था मेरा, तो मेरे फादर उस टाइम पे अलाइव थे और मेरे फादर जो थे वो मेरे दोस्त जैसे थे, मतलब दोस्ती थी। हम लोग एक्चुअली घंटों बात करते रहते थे। तो इनफैक्ट उन्होंने ही, जैसे मैंने कहा कि मैंने 20 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाई है, तो उन्हीं का सपोर्ट था। और उन्होंने मुझे इतनी यंग एज पे पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जैसी किताबें, गालिब, मीर, ये सब मुझे पढ़ने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। तो वो जब मेरी राजकुमार इतनी बड़ी फ्लॉप हुई तो मैं थोड़ा सा हताश हो गया था, मन नहीं था काम करने का, कुछ और बिजनेस सोचने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने मुझे मॉनेटरी सपोर्ट तो खैर था ही उनका, बट उन्होंने एक जो मेंटल सपोर्ट होता है वो उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मुझसे कहा, जो मैं बाकी डिटेल में तो बहुत, इन शॉर्ट उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, ये जो फिल्म में आपको नुकसान हुआ है तो ऐसा बड़ा काम करोगे तो नुकसान बड़ा ही होगा। अगर तुमको ऐसे बड़े काम में और बड़े नुकसान से डर लगता है तो फिर तुमको पंसारी की दुकान खोलनी चाहिए थी, उसमें नुकसान नहीं होगा। उसमें 2 आने की वो चीनी खरीदो, 3.5 रुपये 3.5 आने में बेच दो, तो उसके अंदर नुकसान का कोई वो ही नहीं है। अब ऐसा काम करोगे तो होगा, तो क्यों घर बैठे हो, चलो और करो। और उसके बाद फिर मैंने इस बात से होके एक फिल्म है जो मेरी, मैं जिसका नाम पहले आपने पूछा तो मैं बताना भूल गया, जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म हुई और शायद आपने देखी भी होगी, जिसका नाम था घरवाली बाहर वाली, जिसको डेविड धवन जी, हाँ, रवीना टंडन, अनिल कपूर, जिसको डेविड धवन जी ने डायरेक्ट किया था। तो वो मैंने पिक्चर बनाई और मैं जो पूरा तो नहीं बट हाँ काफ़ी हद तक मैं अपने लॉसेस से बाहर निकला और पिक्चर भी बहुत अच्छी गई, नाम भी मिला, कमर्शियली भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत खुश हुए। तो ये है कि आप बड़ा काम करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा, अगर आपको ज़िंदगी में खेलना है तो आपको ये तो करना ही अभी पड़ेगा। तो जामनगर में आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, इसलिए आपको आना जाना तो बहुत रहेगा जामनगर में। और बात आई ये सितारा मल्टीप्लेक्स की, तो आप ओपनिंग में पे आप आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, मगर ये हितेश भाई नहीं भी बुलाएंगे तो भी हम मतलब ज़बरदस्ती पहुंच जाएंगे। हम तो सर पूरा फैमिली चाहते हैं। कोशिश करेंगे। जी भी आएंगे, श्रद्धा कपूर भी कोशिश आएगा, करेंगे। शक्ति कपूर जी भी कोशिश करेंगे फैमिली को लाने की। आ रहे थे, ये देखा आपने कि ये टूटू शर्मा जी था और प्रदीप जी शर्मा जी, क्योंकि ये लोगों को इतना बड़ा आदमी है लेकिन इतनी नॉर्मल बात देखा आपने, इतना इजी इसने आंसर दिया और इतना समझो पब्लिक को भी प्रभावित होगी, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बड़ा है। तो हमको ये भी आज इसका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। हम भी हमारी जात को नसीबदार समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आदमी के साथ बैठना ये भी एक नसीब की बात है। तो आज ने हमारा हितेश भाई सौजानी ने हमने ऐसा मौका दिया है। तो आज सितारा मल्टीप्लेक्स की बात है, तो अप्रैल या मार्च में ये शुरू होगा और ग्रीन सिटी में होगा। तो इसकी जो बात है हितेश भाई के साथ हम शेयर करेंगे, बात करेंगे